ओके बच्चों, वी आर डिस्कसिंग द स्पेसिमेन पेपर एग्जामिनर कैंडिडेट रिस्पांस जो उसने जनरेट किया है फॉर द पर्पस ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसकी एक्सपेक्टेशन हमसे क्या है फॉर द फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन 2023 बिकॉज दिस इज एन एंटायरली न्यू थिंग, बिल्कुल चेंज एनालिसिस, चेंज इवेल्युएशन, चेंज एप्लीकेशन। तो हमसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसलिए खुद ही उसने कुछ आंसर स्पेसिफिक हमें जनरेट करके दिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5 मार्क्स नाम से टेस्ट होगा। ये क्वेश्चन है, एनालाइज वन वे इन विच एथिक्स में इन्फ्लुएंस द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो एथिक्स जो है वो उस पे हमने अभी स्पेसिमेन पेपर में भी देखा कि एथिक्स के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है 5 मार्क्स का। अब ये बच्चा, अगर उसने खुद लिखा है किसी बच्चे का आंसर, बहरहाल एथिक्स इज इन बिजनेस इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट govern the behavior and decisions of the activities of business organizations so that they only do what they consider to be morally right and correct. This is a very good definition covering all the aspects of the ethics. तो इस तरह की definition लिखने से ही आपको full marks मिलते हैं। बच्चे हमेशा पूछते हैं full marks definition से, कि तो the definition should be in such a way that it covers every possible aspect of that concept. There are many ways in which ethics may influence the activities of business. One way is which business treats its employees. Business committed to ethical business activities will likely to use resources to ensure that the supportive working environment where principles of diversity and equality, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी यूज करके अगेन द स्टूडेंट इज ऑब्टेनिंग मोर नॉलेज मार्क्स। ये पार्ट ऑफ हैबिट होना चाहिए आपका कि आप अपने आंसर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज और जैर्गन्स को यूज कर सकें। In order to prevent discrimination and alienation, again very good explanation with more application to the business environment कि अगर equality और diversity होगी तो कैसे discrimination कम हो जाएगी। The business may well spend more than the other business activities to build a high level of the employee morale and welfare. Such policies are viewed as the right thing to do. Again, good show of knowledge. Ethics may also influence the affect the treatment of the employees, external or particular business. This may result in additional cost for an ethical decisions. Okay. क्या एग्जामिनर इसको इवेल्युएट कर रहा है? अगर आप देखें, द मार्क्स फॉर द नॉलेज इज अवॉर्डेड एज एक्यूरेट डेफिनेशन इन एथिक्स 1 out of 1 नॉलेज मार्क्स आर अवॉर्डेड। The answer then clearly applies the concept of ethics relevant to the business situation. उस पर भी 2 out of 2 मिल गया जब उसने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन रिड्यूस होगी अगर वो इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी को लेके आएगा। ठीक है, इक्वालिटी ऑपरेट्स एग्जांपल ऑफ एथिकल चॉइसेस में भी नॉट फॉर द प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर, गुड एप्लीकेशन। The 5 marks in the section A of the paper requires analysis for 2 marks. यहाँ से उसको पूरे नंबर नहीं मिल सके। इसने क्या किया? The answer analysis of ethics may influence the way the business treats employees. The analysis refers to the impact of ethical activity of employees external to the business but does not develop any analytical point. ठीक है, उसके ऊपर उसने अपनी चेन ऑफ आर्गुमेंट को डेवलप नहीं किया, फर्दर उसने अपने पॉइंट्स नहीं दिए। अदर अप्रोच कुड बी फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द एथिकल एक्टिविटीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज सप्लायर्स वगैरह, गवर्नमेंट कम्युनिटी, वो उनको डेवलप करते हुए यहाँ तक अभी जा ही सकता था। तो ये उसने किया। बहरहाल कॉमन मिस्टेक्स एग्जामिनर की क्या कह रहे हैं हमसे, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं। सम कैंडिडेट माइट टेम्प्टेड टू पुट द कंक्लूजन टू द आंसर, देयर इज नो नीड। An analysis is a new requirement in the 5 marks question. Candidates should avoid too much emphasis on application and knowledge, and they should develop their analytical comments. तो ये पहली बात। Coming to the 8 marks question, analyze 2 possible disadvantages to a business of using PRP to motivate its employees. कि performance related pay से जो भी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो we developed a good definition of PRP. हमने कहा performance rated pay is employee payment system that rewards individual or teams according to how well they perform, and performance is measured against preset agreed objectives. PRP mainly associated with the manufacturing business, although businesses in service sector may also use the method of employee payment. Performance rated pay may in some businesses is limited to payment to those who have performed exceptionally. ये उसने जितना भी नॉलेज देना था उसने पहले पैराग्राफ में दे दिया। आप पहले पैराग्राफ में भी दे सकते हैं और बाकी आंसर डेवलप करते हुए भी दे सकते हैं, बट दिस इज अ गुड स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ही हैज प्रोड्यूस्ड वेरी हैंडसम नॉलेज कि उसको उसके पूरे नॉलेज के नंबर यहाँ से मिल जाए। परफॉर्मेंस रेटेड पे कैन प्रोड्यूस, अच्छा उसने पहला डिसएडवांटेज दिया, परफॉर्मेंस रेटेड पे कैन प्रोड्यूस अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट. इट कैन प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ बिजनेस as unhealthy competition for reward develops.
तो हमने भी बात की, जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि अनहेल्दी कंपटीशन अराइज हो सकता है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उस पर डिस्कशन करेगा तो उसको एनालिसिस के मार्क्स मिलेंगे. It can result under excessive pressures and stress, and more effort is demanded from them. Employee may focus only their own individual opportunities to gain rewards. Okay, perfect. Another analytical point. Performance rated pay can also result in favoritism and discrimination. और ये एक और analytical point दिया. इसके साथ क्या problem है अभी हम इस पे बात करते हैं. Performance rated pay system often difficult to plan and implement and can lead to poor quality performance. उसका रिजल्ट, दूसरा डिसएडवांटेज उसने बताया कि पुअर क्वालिटी परफॉर्मेंस होगी. क्यों होगी? रीजन हमेशा बतानी होती है. एज एम्प्लॉइज फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट रादर देन द क्वालिटी ऑफ इन आउटपुट. तो क्योंकि लोग जाहिर है ज्यादा चीजें बनाने की कोशिश करेंगे, उन्होंने तो टारगेट अपने अचीव करने होंगे. ओके. It is also often difficult to measure the performance rated, especially in the service business. A performance rated payment system that is not carefully planned and implemented can lead to the subjective and unfair assessment of the performance of employees. Okay जी, this can lead to morale and okay जी. तो अब हम आते हैं अपने उसकी तरफ, एग्जामिनर कमेंट्स की तरफ. क्लियरली डिफाइंस, उसको पूरे मार्क्स मिल गए वहां से. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के 2 मार्क्स. द आंसर देन अप्लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रेलिवेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट. तो उसको भी उसने जो सिचुएशंस पे अप्लाई किया कि प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इस तरह के काम किए, तो उसको उसमें से भी उसके पूरे 2 मार्क्स मिल गए. The paragraph 2 and 3 answer the awarded 3 out of 3. The marks for the analysis, 2 groups of the analysis of marks, they indicate the balance between the knowledge and analysis could have been improved with some developed analysis. दोनों पैराग्राफ में अगर आप देखें तो द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गिव मोर एनालिटिकल पॉइंट्स की बजाय मोर पॉइंट्स ओनली. फॉर एग्जांपल पहले वाले में भी उसने आखिरी सेंटेंस में कह दिया परफॉर्मेंस रिलेटेड पेमेंट सिस्टम कैन आल्सो रिजल्ट इन फेवरेट. ये ऊपर वाले पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है इफ यू लुक एट दैट, जबकि उसी को अभी डेवलप होना चाहिए. और दूसरे वाले में भी स्पेसिफिकली इफ यू सी, तो उसने क्या किया है कि पहले अच्छा डेवलप करते करते बाद में लीड टू अनफेयर असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, और उस पर चला गया. अनदर एनालिटिकल पॉइंट उसने अनदर पॉइंट दे दिया और डेवलप्ड एनालिसिस उसने नहीं दिया. तो ये बच्चे करेंगे जिसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाएंगे. तो यहाँ पे भी आप देखें, द स्टूडेंट हैज रिपीटेड द सेम मिस्टेक. ही हैज नॉट डेवलप्ड द एनालिसिस टू स्कोर फुल मार्क्स. तो एग्जामिनर हैज गिवन इन 7 आउट ऑफ 8 मार्क्स. ओके जी. क्वेश्चन 6 था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फास्ट फूड रिटेलर रेस्टोरेंट इज मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ मोरल. क्या यही उसका जॉब है या उसकी और भी जॉब्स हो सकती हैं? तो हमने कहा कि द रोल ऑफ HRM इन द बिजनेस टू कैरी आउट एम्प्लॉयज पॉलिसी सच एज रिक्रूट. HRM को डिफाइन किया बड़ी गुड तरीके से, एंड ट्रेनिंग वगैरह. फिर हमने फास्ट फूड के मतलब एक बैकग्राउंड डेवलप किया. हमने कहा फास्ट फूड रेस्टोरेंट सच एज मैकडोनल्ड एंड केंटकी फ्राइड चिकन. दिस इज एन एग्जांपल दैट यू कैन आल्सो गिव. आई ऑलवेज टॉट यू कि अपने अपने आंसर्स के अंदर ज्यादा रेलिवेंट मल्टीनेशनल्स के एग्जांपल्स लाया करो. McDonald need effective HRM roles and functions to build maintain the distinctive and attractive places to eat. These restaurants tend to be staffed young part-time employees. अब ये देखें, this is a good application relating to the HR function कि वो ये करता है basically. These restaurants tend to be staffed with okay. These work environment requires both teamwork and compliance with highly regulated production system. अब again this is a good application because ये किसका काम है? HR का काम है कि ये systems बनाना, regulations develop करना. The role of HRM in these restaurants is continuously recruit and train these employees. वहाँ पे वो ये भी कर रहा है कि ट्रेनिंग. तो दिस इज अ गुड वे ऑफ एप्लीकेशन. बाय द वे हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक बहुत डिटेल्ड अपनी बैकग्राउंड दे दें आंसर की, और फिर आंसर के अंदर भी एप्लीकेशन यूज करते हैं. बस इस बच्चे से ये गलती हुई कि इसने शुरू में ही एप्लीकेशन दे दी और बाद में देना भूल गया, जिसकी वजह से इसके 2 मार्क्स कट गए. For a national and international group of fast food such as McDonald's and Kentucky, again an application, the maintenance of the high level of employee morale and welfare is important. उसने कहा जी important है because HRM uses resources to create positive work environment. Employees may feel valued. इसका फायदा क्या होगा? Valued. फिर उसने यहीं पे evaluation दे दी. Evaluation यहाँ पे different भी हो सकती थी, लेकिन in my point concern high level of morale was the most important. उसने कहा जी मेरे नजदीक ये बड़ा important. Many businesses also spend a lot of HRM resources on training and development programs. This money is spent to give employees the skills needed to work productively in teams. उसने कहा लेकिन वो ये भी करते हैं कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि जब मैं हम क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे तो हमने कहा वो ट्रेनिंग भी उनका जॉब है. द ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द. उसने कहा जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस पे भी कुछ उसको बात करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की.
इन माई व्यू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसने कहा मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ही होती है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट राइट पीपल विद द राइट एटीट्यूड एंड रिक्रूटर, क्योंकि उस रीज़न भी दे दी साथ के क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट पीपल राइट एटीट्यूड होनी ही चाहिए। हायरिंग एंड रीट्रेनिंग द राइट एम्प्लॉयज is critical to the success of all business. Maintaining a right high quality employees morale can only be achieved if the employees are. उसने कहा जी वो भी जरूरी है लेकिन वो तभी होता है जब right employees आपके पास हो। The examiner has given him 10 out of 12 marks. You can read the comments. It is very important that a current balance between okay जी सारी चीजों में होना चाहिए। The answer seeks to establish a good balance between assessment of skill content. वो उसने शुरू में तो अच्छा बैलेंस किया। द फर्स्ट पैराग्राफ जो है इट वाज गिवन गुड शो ऑफ द नॉलेज। द सेकंड पैराग्राफ गिव्स अ डिस्कशन तो केएफसी और मैकडोनल्ड के एप्लीकेशन भी कर ली। द फाइनल 3 पैराग्राफ प्रेजेंट एनालिसिस and HRM role on the employees and business performance also presented in these the explicit cell of the evaluative comment। जो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि हर एनालिसिस के साथ ही उसका इवेल्युएशन भी होनी चाहिए। लेकिन जो है वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना उसके कितने मीट कर सका है। जजमेंट आर मेड टुगेदर विद द आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दोज जजमेंट्स बट दीज डेवलप्ड रिलेटिव आर वेरी जनरल एंड लैक द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो कैंडिडेट अवार्डेड 4 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 4। इवैल्यूएशन में उसको पूरे नंबर नहीं मिले क्योंकि इवैल्यूएशन के अंदर उसने अपनी जो रिलेशनशिप है जो फास्ट फूड के साथ वो रिलेट नहीं किया। ठीक है। बहरहाल आगे एक डिटेल भी है। देयर इज एन इवैल्यूएटिव वे, देयर इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रोड्यूसिंग स्ट्रांग इवैल्यूएशन। द इवैल्यूएटिव अप्रोच इज द एसे कुड फॉर एग्जांपल बी रिप्लेस्ड विद द डेवलप्ड जजमेंट दैट द कंक्लूजन दैट द focus on just one HRM factor. The single factor could have been concern of the customer care and training and development of employees। किसी एक फैक्टर पे बेस करके भी उसे कर सकते। तो ये था जो ECR एग्जामिनर कैंडिडेट रिस्पांस है जो एग्जामिनर ने इशू किया है। एंड वी हैड अ डिस्कशन कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या कर सकते हैं।